Hello, friends. Today we are going to understand the poem The River, which has been written by Valerie Bloom. Valerie Bloom was born in 1956. She is a poet and a novelist. The river is a wanderer, a nomad, a tramp. He doesn't choose any one place to set up his camp. सो वन बाय वन हम इसके स्टैंजास को समझेंगे। तो पहली चीज जो आपने यहाँ पे नोटिस करनी है कि पूरी पोम में हर एक स्टैंजा में आर कैपिटल लिखा गया है। सो दैट मीन्स इट इज यूज्ड लाइक अ पर्सन's नेम। दैट इज वाई आप किसी भी स्टैंजा में नोटिस करेंगे आर इज कैपिटल, अपर केस में लिखा गया है आर। दैट मीन्स ये एक पर्सन के नेम की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ पे पोएट ने रिवर को एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज दी हैं। हर एक स्टैंजा में यू विल नोटिस दैट द वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द रिवर आर एक्चुअली यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। तो दिस इज कॉल्ड personification. That means giving human characters to a non-living thing. Before beginning the poem, I have some questions for you. Have you ever seen a river? Did you go to the river bank or did you see it from afar? What words come to your mind when you think of a river? Have you seen the footage of a flood on news or read about it in newspaper articles? Think over these questions and answer these questions in your mind. Alright, let's start with the first stanza. The river is a wanderer. Wanderer means the person who travels aimlessly. A traveler is called wanderer. So, river is being compared to a wanderer. A nomad, a tramp. Nomad is a person or a member of a group who travels from place to place and he or she does not live at one place. Tramp is a person with no home and no job. So, river is all of these three things: wanderer, nomad, tramp. He doesn't choose one place to set up his camp. तो रिवर के बारे में कहा जा रहा है कि रिवर कीप्स ऑन ट्रेवलिंग। ये एक जगह पे रुकती नहीं है। जैसे वॉन्डरर, नोमैड और ट्रैम्प एक जगह पे नहीं रुकते, वो ट्रैवल करते रहते हैं। उनका कोई एक ट्रैम्प का एक घर नहीं होता, नोमैड का एक घर नहीं होता प्रॉपर। सेम वे रिवर का भी कोई एक कैंप नहीं होता। एक जगह पे वो अपना कैंप सेट नहीं करती, मीन्स एक घर सेटअप नहीं करती। एंड इट कीप्स ऑन traveling like wanderer, nomad, and tramp. So, in this stanza, personification has been used. River को सारे human characters दिए गए हैं by using the words wanderer, nomad, tramp. Second thing, this is also metaphor. River is a wanderer, river is a nomad, river is a tramp. It is a metaphor because we are directly comparing the river to wanderer, nomad, and tramp. It is not simile because as or like have not been used here. So it is also metaphor, it is also personification used here. Alright, let's move on to the second stanza. The river is a winder through valley and hill. He twists and he turns. He just cannot be still. Winder means it does not move straight, someone who does not move straight and moves in turns. So this river, it's winding up, it's going in turns through valley and hills. So what is a valley? Valley is basically a low area of land between the hills. So low area of land between the hills from where rivers flow, right? So through valleys, rivers also flow. So this river can flow through valleys and through the hills. He twists and he turns.
means it is not going straight, it is taking turns, twists and turns, and cannot be still means no movement at all. तो यहाँ पे रिवर स्टिल नहीं रह सकती। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि रिवर स्टिल मीन्स विदाउट मूवमेंट नहीं रहती, और ये अपने ट्विस्ट और टर्न्स में चलती रहती है, स्ट्रेट नहीं जाती। ही ट्विस्ट एंड ही टर्न्स, इस लाइन में पोएट हैज यूज्ड विजुअल इमेज। विजुअल इमेजरी मीन्स जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने आईज के साथ देख रहे हैं, that there we say that visual image has been used. Let's move on to the next stanza. The river's a hoarder, and he buries down deep those little treasures that he wants to keep. The river is a hoarder. Hoarder means someone who collects large amounts of something and keeps it for themselves in a secret place. कोई किसी चीज के लार्ज अमाउंट अपने पास छिपा के रख ले किसी सीक्रेट प्लेस पे, उस पर्सन को हम होर्डर कहते हैं। तो रिवर को पोएट होर्डर कह रहा है। लेट्स सी व्हाई। एंड ही बरीज डाउन डीप दोज लिटिल ट्रेजर्स दैट ही वांट्स टू कीप। तो होर्डर वर्ड इसलिए रिवर को दिया है बिकॉज जो भी रिवर में गिर जाता है, चाहे वो नेचुरल कोई थिंग हो, पेबल्स हो, स्टोन हो, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग्स की चीज़ें हो, जो भी रिवर में गिर जाता है, रिवर उसको अपने अंदर बरी कर लेती है, अपने अंदर ले जाती है, अंडरग्राउंड ले जाती है। बरी मीन्स टू पुट समथिंग और टू हाइड समथिंग अंडरग्राउंड। सो दिस इज द रीजन रिवर को होर्डर कहा है पोएट ने, क्योंकि वो भी एक होर्डर की तरह हर एक चीज को अपने पास छिपा के रख लेती है। तो हर एक ट्रेजर जो भी रिवर के आसपास आता है, रिवर में जाता है, वो अंडरग्राउंड डीप अंडर द वाटर चला जाता है। तो रिवर उन सारे ट्रेजर्स को, उन सारी कीमती चीजों को अपने पास रख लेती है जो वो रखना चाहती है। तो अगेन रिवर इज अ होर्डर, पर्सोनिफिकेशन है ये। ह्यूमन बीइंग करेक्टर्स रिवर को दिए गए हैं। एट द सेम टाइम ये मेटाफर भी है। डायरेक्टली वी आर कंपेयरिंग द रिवर विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक। Next thing, it is also here, he buries down deep those little treasures. यहाँ पे visual image has been used. तो with our eyes we can imagine कि रिवर चीज़ों को अपने अंदर लेके जा रही है, सभी चीज़ें उसके अंदर समा रही हैं, अंडर द वाटर दे आर गोइंग। सो यहाँ पे it is visual image. The river's a baby, he gurgles and hums and sounds like he's happily sucking his thumbs. The river is a baby. So again metaphor and personification. Human characters दिए गए हैं रिवर को and comparison किया गया है रिवर का बेबी के साथ. So what is the reason? Let's see that. तो रिवर की साउंड है जो, वो गर्गलिंग साउंड और हमिंग साउंड है, जैसे कि एक बेबी अपना थम सक कर रहा होता है उस टाइम वो गर्गल मीन्स बबलिंग साउंड, जैसे बबल्स की साउंड होती है या फ्लोइंग वाटर की साउंड। तो उस तरह से जैसे एक बेबी अपने माउथ से आवाज़ कर रहा होता है, गर्गल साउंड या फिर हल्की सी हमिंग साउंड, उस तरह की साउंड्स हमारे रिवर में से भी आती हैं। ये साउंड्स कैसी हैं? जैसे कोई बच्चा हैप्पीली, खुशी में अपने थम्स मीन्स अंगूठे सक कर रहा हो, मीन्स उनको अंगूठों को चूस रहा हो खुशी खुशी। तो इस तरह की साउंड्स आती हैं, गर्गल और हम की साउंड, जैसे कोई बेबी के सकिंग से आती है साउंड्स, उसी तरह रिवर से साउंड्स आती हैं। सो हेयर पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर. Another thing, if you notice here, he gurgles and hums. Here, which imagery has been used? Gurgles and hums. दोनों words
साउंड रिलेटेड वर्ड्स हैं. Gurgle is sound of running water and hums is continuous low sound. So that is why यहाँ पे sound imagery or sound image has been used with the help of these words gurgles and hums. Sound image means जो चीज हम imagine कर रहे हैं कि हम अपने कानों के साथ सुन सकते हैं. Let's move on to the next stanza. The river's a singer. As he dances along, the countryside echoes the notes of his song. The river is a singer. So comparison and personification, metaphor and personification both have been used here. रिवर को हम सिंगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. रिवर को हम डायरेक्टली सिंगर बोल रहे हैं, तो दिस इज मेटाफर. ऑल्सो सिंगर ह्यूमन करेक्टर्स हम रिवर को दे रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड सिंगर. ही डांसेस अलोंग, अगेन दिस इज पर्सोनिफिकेशन. डांसिंग वर्ड रिवर के लिए यूज हो रहा है. डांसिंग जो कि एक ह्यूमन करेक्टर है, ह्यूमन क्वालिटी है, दैट वी आर यूजिंग फॉर अ non-living thing. So this is again personification. तो रिवर एक सिंगर है और ऐसे लगता है कि रिवर डांस कर रही है. कंट्री साइड मीन्स जो रूरल एरिया है, सिटी से दूर एरिया है, वहां पे ऐसे लगता है वहां पे एको हो रही है. एको मीन्स जो साउंड गूंज के आपको दोबारा से सुनाई देती है, उसे हम एको बोलते हैं. तो जो कंट्री साइड एरिया है वहां पे रिवर की आवाज गूंज रही है. किस चीज के साथ? रिवर के सॉन्ग्स के साथ. नोट्स ऑफ द सॉन्ग्स, नोट्स ऑफ हिज सॉन्ग्स. नोट्स मीन्स म्यूजिकल सिंबल्स. म्यूजिक है जो उसके सॉन्ग का, रिवर के सॉन्ग का, उसके साथ कंट्री साइड है जो रूरल एरिया है, वो हमारा वहां पे आवाज गूंज रही है. डांसेस अलोंग, दिस इज विजुअल इमेज, बिकॉज डांस इज समथिंग जो हम अपनी आईज के साथ इमेजिन करते हैं. हम इमेजिन करते हैं कि हम अपनी आईज के साथ देख रहे हैं. echoes the sound, echoes the song. echo वर्ड साउंड रिलेटेड वर्ड है, साउंड गूंजना. तो ये हमारी साउंड इमेजरी यूज हुई है यहाँ पे, साउंड इमेज. The river's a monster, hungry and vexed. He's gobbled up trees and he'll swallow you next. रिवर इज अ मॉन्स्टर. तो रिवर को मॉन्स्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. मेटाफर है और साथ में इट इज पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन करेक्टर्स एंड डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ रिवर विद मॉन्स्टर. डायरेक्टली हम रिवर को मॉन्स्टर बुला रहे हैं. मॉन्स्टर, व्हाट इज अ मॉन्स्टर? कोई मॉन्स्टर इज अ लार्ज अगली एंड फ्राइटनिंग क्रिएचर, जिससे हमें डर लगे और वो बड़ा सा क्रिएचर हो, दिखने में सुंदर ना हो, अगली हो, उसे हम मॉन्स्टर बोलते हैं. हंग्री एंड वेक्स्ड. हंग्री मीन्स भूखा, वेक्स्ड मीन्स फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री, इरिटेटेड और एंग्री. तो रिवर मॉन्स्टर है जो हंग्री है और एंग्री है. ही इज गॉबल्ड अप ट्रीज. तो उस गुस्से में रिवर ने ट्रीज गॉबल कर लिए. गॉबल मीन्स ईट लार्ज अमाउंट वेरी क्विकली. तो ट्रीज उसने अपने अंदर ले लिए हैं, या आप कह सकते हैं खा लिए हैं. गॉबल वर्ड यूज हुआ है. एंड ही विल स्वॉलो यू नेक्स्ट. तो अब ट्रीज आर देयर इनसाइड द रिवर. रिवर हैज फिनिश्ड द नेचुरल थिंग्स. अब नेक्स्ट नेचुरल थिंग्स को भी रिवर फिनिश कर सकती है, डैमेज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है. उसके साथ रिवर का जो मॉन्स्टर वाला साइड है, उसके साथ ह्यूमन बीइंग्स को भी खतरा है. सो अब ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद रिवर विल स्वॉलो यू नेक्स्ट. मीन्स अब वो आपको भी निगल लेगी. रिवर आपको, ह्यूमन बीइंग को, या आपको भी अपने अंदर ले जाएगी. तो इस पोम में हमने रिवर के पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स नोट किए हैं. तो स्टार्टिंग के सारे स्टैंजाज में ऑल वर पॉजिटिव. वी वर फोकसिंग ऑन द ब्यूटी ऑफ द रिवर, ब्यूटीफुल साउंड्स ऑफ द रिवर, हाउ इट moves, how it twists and turns. But लास्ट में हमने इसके कुछ नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी नोट किए. दैट मीन्स जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती है या जब फ्लड्स होते हैं, देन
what situation arises? Then the situation of destruction arises. Like this poem, like river के भी पॉजिटिव नेगेटिव दो क्वालिटीज होती हैं. सेम वे रिवर के जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में भी, ह्यूमन बीइंग्स की भी दो क्वालिटीज होती हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग में. हर एक ह्यूमन बीइंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वालिटीज होती हैं. तो जैसे रिवर्स को हमने एक्सेप्ट किया है बोथ पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटीज के साथ, सेम वे हमारी लाइफ में जो जो भी पर्सन हैं, हमें उनको भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए उनकी दोनों क्वालिटीज के साथ. गॉबल्ड अप ट्रीज, यहाँ पे he has gobbled up trees, यहाँ पे visual image has been used because this is something we can imagine with our eyes, that we are seeing it with our eyes कि tree अपने अंदर, कि river अपने अंदर trees को लेके जा रही है. This is visual image. Now let's check the rhyme scheme of the poem. To check the rhyme scheme, we'll check the last words of the lines. First word of the first line, last word of the first line is wanderer. So we'll give it alphabet A. Let's see the next word, will it does it rhyme or not? Tramp. So wanderer and tramp, there is no rhyming here, so we'll give it alphabet B. Third line says place. So place, tramp, wanderer. Is it rhyming? No, it is not. So we'll give it letter C. Let's check the last one. Last line, last word is camp. So camp, wanderer, tramp, place. Yes, it is rhyming. With which one? It is rhyming with tramp. So if we have given letter B to tramp, we'll give it letter B to camp also. So we have got a rhyme scheme, and the rhyme scheme is A B C B. The rhyme scheme is A B C and B. This is the rhyme scheme of the poem. Another message जो हम इस poem से relate कर सकते हैं is that कि जैसे जैसे रिवर अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ निकलती है, अलग अलग जगह से निकलती है, कई बार स्मूथली निकलती है, कई बार ओवरफ्लो होके बहुत फास्ट निकलती है. सेम वे एक इंसान की लाइफ भी कई बार स्मूथली चलती है, कई बार उसकी लाइफ में ट्विस्ट टर्न्स आ जाते हैं और कई बार कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं. तो इस तरह से हम एक इंसान की लाइफ इस पोम के थ्रू रिलेट कर सकते हैं एक रिवर के लाइफ के साथ. तो जैसे रिवर अपने पाथ पे चलती रहती है, सेम वे इंसान भी अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज फेस करता है, डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करता है और एक हैप्पी स्मूथ लाइफ भी होती है उसकी. तो दोनों ही सिचुएशंस में लाइफ कीप्स ऑन गोइंग. सो दिस मैसेज वी गेट फ्रॉम द पोम. अदर फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें यूज़ हुई है वो है रेपिटेशन. रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच मीन्स कोई वर्ड पोम में बार बार रिपीट हो रहा हो, कोई सेंटेंस पोम में बार बार रिपीट हो रहा हो. तो इस पोम में द रिवर इज़ ये वर्ड्स पोम में हर एक स्टैंजा में रिपीट हो रहे हैं. सो वी कैन से दैट फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन इज़ यूज्ड हियर इन द पोम. तो ये हर एक स्टैंजा में रेपिटेशन है. The river is a baby, the river is a singer, the river is a hoarder. Alright, another figure of speech which is used here is simile. So if you notice here, with the help of like word, simile has been used for comparison. The river is a baby, he gurgles and hums and sounds like he's happily sucking his thumbs. तो river की sound बेबी की थम सकिंग की साउंड के साथ कंपेयर की गई है with the help of the word like. So like has been used here, that means it is
simile has been used here. So we have discussed personification, we have discussed visual imagery, we have discussed sound imagery, metaphor, repetition, and simile. तो इन द एंड डार्क साइड ऑफ द रिवर हैज़ ऑल्सो बीन शोन कि अगर कोई इंसान उस रिवर में गिर जाता है तो ही विल नॉट बी एबल टू कम आउट और वो रिवर उसे भी स्वॉलो कर जाएगी या उसे भी खा जाएगी. दैट पर्सन विल ड्राउन इन द रिवर. किस तरह के क्वेश्चंस हम इसमें से आंसर कर सकते हैं? तो पहले आपके वर्ड मीनिंग्स आ गए. वॉन्डरर मीनिंग पर्सन हु ट्रेवल्स एमलेसली. Tramp, a person with no home and no job. Nomad, a person who does not live at one place. Hoarder, someone who collects large amounts of something and keeps it at a secret place. Gurgle, sound of running water or bubbling sound because of that running water. Vexed means frustrated and angry. सो नेम आपको एक स्टैंज़ा दे सकते हैं और उस स्टैंज़ा का आपको पूछ सकते हैं कि ये स्टैंज़ा कौन सी पोम में से लिया गया है और उस पोम का पोएट कौन है. ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो पोम का नाम है द रिवर एंड पोएट इज़ वैलेरी ब्लूम. राइम स्कीम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. राइम स्कीम इज़ ABCB, wanderer, tramp, place, camp. So tramp and camp, they are rhyming words here. Next we have discussed personification. Personification means giving human characters to non-living things. तो यहाँ पे रिवर के लिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. नोमैड, ट्रैम्प, wanderer. So all these words are used for human beings. तो यहाँ पे रिवर को ह्यूमन बीइंग की करेक्टरिस्टिक्स दिए जा रहे हैं. दैट इज़ वाई वी कैन से figure of speech personification has been used. Imagery we have already discussed. Visual image has been used and audio image or sound image has been used. Metaphor, direct comparison is there. River is a monster, river is a baby, river is a singer. Repetition, the river is a, ये जो लाइन है, ये जो वर्ड्स है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक स्टैंजा में. सो रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड. Simile, he gurgles and hums and sounds like he's happily sucking his thumbs. So gurgling sound of the river is compared to sound made by a baby, and for that like word has been used. So it is a simile figure of speech here.